Good evening to you all. Myself, Dr. Himanshu Sharma. On the Yes, behalf of Team Physio Inculcator, I would like to welcome you all in our today's session. Today, we have a very eminent personality with us, a senior physical therapist and associate professor in the Jaipur Hospital and College of Physical Therapy. Dr. M.D. Sharma sir is here with us on the board to deliver his talk on a much needed topic, the physical therapy, role of physical therapy in the arthritis of the hip joint. So we are really grateful to the MD Sharma sir for sparing their precious time to share their incredible knowledge for the participants. We are really feeling honored to have the Dr. MD Sharma with us. I don't like this. Hello, hello. Am I audible? Hello, hello, yes, yes, yes. हेलो हेलो सर मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है अच्छा अच्छा, मैं एक्चुअली मुझे लगा मेरी स्क्रीन बंद हो गई थी तो मुझे लगा शायद नेटवर्क चला गया. ओके नहीं सो आ रही है कंटिन्यू ओके कंटिन्यू ओके. So we are really thankful to the Dr. M.D. Sharma sir for sparing their precious time to share their incredible knowledge for the participant. Dr. M.D. Sharma sir is a research scholar in the physical therapy and he has done his specialization in the musculoskeletal disorders. Dr. M.D. Sharma sir is currently working as an associate professor in the Jaipur Hospital and College of Physical Therapy, Jaipur, and he is also trained in the manual therapy. Dr. M.D. Sharma is having more than 15 years of clinical as well as academic experience, and he has numerous awards and recognition by their name. He has been awarded by a Best Academician Award in 2017-18, and he has been also awarded by the Rising Star Award in the 2017 in the international conference, and he is also having the contribution in the field of physical therapy as a researcher. So we are really grateful to you, sir, for sparing your precious time. And I would like to let you know for your information, we are also pleased to have many senior faculty members present over here with us on the board. We are really honored and thankful to all of them who are joining us continuously and supporting and blessing us. In the series, we have few senior physical therapists. Dr. Amita Anup Sharma ma'am from the Saudi Arabia. She is a senior physical therapist there. Dr. Kalpana Jutsi ma'am. She is associate professor in the Jamia Hamdard University, Delhi. Dr. Jitendra Munjal sir is a senior physical therapist in the North DMC Medical College, Delhi. My own teachers, Dr. Charu Sharma ma'am, Dr. Harsh Rajdeep sir, and Dr. Ritu Sharma ma'am. So we are really thankful and grateful to all of you for your continuous support and faith in us. Again, I would like to say thanks to the resource person of the day, Dr. M.D. Sharma sir, from the core of my heart. Over to you, sir. thank Thank you, sir. thank you so much. Okay, I'm audible to all. Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. Okay. So today I'm going to deal with osteoarthritis of the hip. So now we start from here. Is screen visible to all? Yes, sir. Visible. You can make it on full screen, sir. Yeah. Now, sir. Absolutely fine, sir. Visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Visible. Okay. So before starting in osteoarthritis, I would like to explain some anatomy and biomechanics of the hip, so we can understand how forces are acting on the hip from the upper half of the body to the ground. So if any alteration in the forces or any weakness or any structural abnormality of the either articulating proximal or distal articulating surfaces, so by that changes uh, lead to so many this so many conditions. One of them is osteoarthritis. So starting from
Okay, so starting from structure of the hip, as you all know, hip joint is the ball and socket type. Two articulating surface, one is cup and one is the ball. So अगर अपन इसको समझें तो जो बॉल है यहाँ पे अगर अपन ये लेंगे तो दिस विल बी आर्टिकुलेटिंग विद दिस एंड acetabulum is the proximal articulating surface. In the acetabulum, the horseshoe shape of the surface is only articulating with the head of the femur. So if any degeneration of the cartilage occurs around the acetabulum, then what will happen? Erosion of the cartilage will happen at the lunate surface only. And if we will move on this distal surface, so around the weight bearing surface, superior surface of the head of the femur will go in degeneration, but not, this is not the degeneration type of the disease. This is degeneration as well as regeneration type of the disease, because after degeneration body tend to regenerate some cartilage or some bone after erosion of the subchondral bone. So we will discuss it later, but पहले अपन थोड़ा सा anatomy देख लेते हैं. So this is the angle of the proximal articular surface, central edge angle. ये सारी चीजें बताने का बेसिक पर्पस ये है कि किस तरह से बेसिकली नॉर्मल स्ट्रक्चर है प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस का और डिस्टल आर्टिकुलेटिंग सरफेस का क्या एंगल, क्या नॉर्मल स्ट्रक्चर है. अगर उनमें कोई भी अबनॉर्मलिटी आएगी स्ट्रक्चर के अंदर, so forces basically change होंगे, और forces अगर change होंगे तो that will lead to any destruction of any condition like impingement or degeneration or inflammation. So that's why I'm explaining the normal anatomy and biomechanics. So this is the CA angle, which is basically from the center of the head to the outer margin of the acetabulum, which is normal 30 degree in the male and 35 degree in the females. Average ranges अगर अपन लेते हैं तो it's about the 22 to 42 degrees. If it is less than 22 degrees, so orientation of the acetabulum will be like this. So यहाँ पे क्या होगा कि डिसलोकेशन होने के चांसेस, दैट इज द डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया. तो डिसलोकेशन होने के चांसेस होते हैं, और डिसलोकेशन अगर होता है तो दैट विल लीड टू सेकेंडरी आर्थराइटिस. नाउ एसिटाबुलर एंटीवर्जन, अगर अपन बेसिकली एसिटाबुलम को देखते हैं मींस हिप जोन को, हिप बोन को इन फ्रंटल प्लेन, so that is basically a distal portion of the acetabulum superior the anterior orientation of the acetabulum is basically referred as the angle of acetabulum antiversion. This antiversion अगर basically ज़्यादा है तो that will lead to either excessive internal rotation or excessive internal or external rotation like this. Where it is. Okay, normal angle will be 18.5 degree in the male and 21.5 degree in the females. Acetabulum labrum की अगर बात करते हैं तो acetabulum labrum basically around this edges यहाँ पे होती है, which is in triangular shape, that basically deepen the joint cavity. Now distal articular surface की अगर अपन बात करते हैं तो distal articular surface में दो angles basically present होते हैं. One is angle of inclination as well as angle of torsion. Angle of inclination की अगर अपन बात करते हैं तो angle of inclination होता है between the head and the shaft. Normal will be 125 degree average. If it is it can be ranges from the 115 to 140, but if it is less than the 105 degree, that is termed as coxa vara. If it is more than the 140 degree, that is termed as the coxa valga. दोनों conditions के अंदर basically alteration of the forces होते हैं जो from the upper half to the lower transfer होंगे. Now angle of second angle will be angle of torsion. Angle of torsion अगर अपन लेते हैं तो that is the long axis of the femur, means in relation to the condyles. अगर आप long axis में अपन देखते हैं from the top of the or from the bottom of the femur, which is from the condyle, तो उस relation में head of the femur, neck of the femur will be anteverted
normal angle will be 15 degree. If it is excessive antiversion, then it is approx 45 degree. If it is less than the less retroversion, that means it is towards the 0 means 5 degree or so. दोनों conditions पे basically क्या होता है, rotation will be more, internal और external rotation. Just like in अगर आप देखते CP patients में, तो वहाँ पे internal rotation will be more because of the increased antiversion. Because antiversion अगर ज़्यादा होगा तो वो internal rotate ज़्यादा करेगा. If it is retroverted already, तो retroverted में medial rotation will be less than the lateral rotation. Now ligaments की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो ligaments is basically 4 ligaments inside the joint, which is from the head to the floor of the acetabulum, and iliofemoral, ischiofemoral, and pubofemoral, which basically provides stability to the hip joint. Now motions की अगर अपन बात करते हैं, तो 3 degree of motion present होता है, which is flexion, extension, abduction, adduction, and rotations. So many muscles in anterior compartment as well as posterior as well as medial and lateral compartment. That is basically termed as flexor, extensor, abductor, adductors, and rotators. Now about the forces. अब forces की अगर हम बात करते हैं, in erect standing position, line of gravity will fall posterior to the joint axis. Means अगर आप इस पिक्चर को बेसिकली देखोगे, this is the line of gravity. Line of gravity will fall. This is the joint axis because angle of antiversion is present in the femur. So अगर अपन यहाँ पे लेते हैं, through the greater trochanter और through the long axis of the femur, line of gravity run करेगी, but उसके relation में this is slightly anterior. तो joint axis of the hip will be anterior. Joint of the hip will be anterior to the line of gravity, means line of gravity fall करेगी posteriorly. अब line of gravity अगर posteriorly fall कर रही है, that means anterior structure को strong होना पड़ेगा to maintain the balance. तो if any alteration to these forces, तो यहाँ पे basically क्या होगा, line of gravity fall करेगी anteriorly, और अगर anteriorly अगर fall करेगी, that means any abnormality occurs. वो आगे अपन basically discuss करेंगे. Now forces जो basically आ रहा है from the upper arm, which is known as HAT, that is the head, arm and trunk. तो अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं forces की, तो from the HAT upper half through the spine, बेसिकली जो वेट है वो डिवाइड होता है फ्रॉम द एसआई जॉइंट, आइदर साइड, लेफ्ट और राइट, देन फ्रॉम द एसआई जॉइंट टू द एसिटाबुलम, देन एसिटाबुलम टू द हेड ऑफ द फीमर, फीमर देन नेक, नेक टू द शाफ्ट ऑफ द फीमर. इस तरह से बेसिकली वेट ट्रांसफर होता है ऑन आइदर साइड. दिस शुड बी इक्वल ट्रांसमिशन, मीन्स अगर जो ऊपर से वेट आ रहा है वो इक्वली ट्रांसफर होना चाहिए दोनों तरफ. अगर इक्वली ट्रांसफर नहीं होता है तो एनी स्ट्रेसेस ऑकर्स आइदर ऑन लेफ्ट साइड और राइट साइड, डिपेंडिंग ऑन किस साइड में फोर्स ज्यादा आ रहा है. So like this, in this picture अगर अपन देखते हैं, तो this is the center of gravity, जो basically weight of the upper half का weight आ रहा है, this is line of gravity. ठीक है, तो line of gravity में basically उसका जो force आएगा, gravitational force, वो center में रहता है. उसके relation में अगर अपन distance लेते हैं from this line to the joint axis on either side, this should be equal. और इन बायलेटरल स्टांस, बायलेटरल स्टांस मतलब जब दोनों पैरों के ऊपर अपन वजन रख रहे हैं और इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन में विदाउट एनी टिल्टिंग ऑफ द पेल्विस, आइदर एंटीरियर, पोस्टीरियर और शिफ्टिंग, तो ये दोनों लाइंस बेसिकली दोनों जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है. जब इक्वल होती है तो उसका बेसिक हेल्प क्या होता है कि जब यहाँ से अपन वेट ट्रांसफर करेंगे टूवर्ड्स द राइट साइड, टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, दोनों साइड में इक्वल ट्रांसमिशन ऑफ द वेट होगा. और जब इक्वल ट्रांसमिशन ऑफ वेट होगा तो जो स्ट्रेसेस यहाँ पे होते हैं, मीन्स कोई भी साइड का जो पेल्विस है वो हाइक नहीं होगा, अबनॉर्मल नहीं होगा. मीन्स दोनों जो जॉइंट है, दैट मीन्स फीमर विद इन द एसिटाबुलम डीप इनसाइड रहेगी, और जब डीप इनसाइड रहेगी तो मिनिमम मसल वर्क होगा. मीन्स जो लोड है दैट इज मिनिमम ऑन द मसल, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. बट अगर इसी चीज को अपन शिफ्ट कर देते हैं टूवर्ड्स द यूनिलैटरल स्टांस, तो यूनिलैटरल स्टांस में बेसिकली क्या हो जाता है कि आप एक साइड का वेट ट्रांसफर कर रहे हो ऑन द वेट बेरिंग साइड. इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन, जिस साइड का वेट अपन ने लिफ्ट किया है उस साइड का नॉन वेट बेरिंग, मींस उस साइड पे जो वेट ट्रांसफर हो रहा था वो बेसिकली शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द वेट बेरिंग हिप. तो ये साइड के पेल्विस को हाइक होना पड़ेगा. इस साइड को हाइक होने पे क्या है, अब एंटायर इज बॉडी वेट इज ऑन द सिंगल लिम्ब. इन दैट कंडीशन जो मूवमेंट आर्म था या जो वेट था वो आ रहा है इसकी तरफ टुवर्ड्स द वेट बेरिंग साइड. अब नाउ वेट बेरिंग साइड में अगर इस पेल्विस को
क्लियर करना रहेगा तो मीन्स लिफ्ट करना होगा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होगा टू लिफ्ट दिस पेल्विस अप। और जब ये पेल्विस को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे तभी ये क्लियर होने का रहता है। तो इस कंडीशन में क्या मैक्सिमम स्टेबिलिटी इज बेसिकली बाय बॉडी वेट एज वेल एज मसल वर्क, दोनों की तरफ से जब यहाँ पे वर्क होगा तो ये स्टेबिलिटी मेंटेन होगी। बट अगर इन केस इन कंडीशन में मीन्स दैट इज अबडक्शन टॉर्क अगर सपोज नहीं प्रॉपरली हो रहा है तो व्हाट विल हैपन, द पेल्विस विल ड्रॉप दिस साइड। क्लियर? सो अगर पेल्विस इस साइड में ड्रॉप होगी दैट मीन्स स्ट्रेसेस बेसिकली यहाँ पे बढ़ जाएंगे, स्ट्रेसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि ये इसको लिफ्ट नहीं कर पा रहा है। तो उसके कंपनसेशन में क्या होगा कि फोर्सेस को कम करने के लिए आइदर आप या तो यहाँ से लीन करते हो या फिर आप बेसिकली कोई असिस्टेंस आपको लेना पड़ता है। तो कुछ कंडीशन में अगर अपन फोर्सेस को कम कर रहे हैं दैट मीन्स रिडक्शन ऑफ मसल फोर्सेस। तो रिडक्शन ऑफ मसल फोर्सेस को बेसिकली अपन किस तरह से कम कर सकते हैं, आइदर बाय कंपनसेटरी लीन और आइदर बाय यूज ऑफ केन इप्सिलैटरली, सेम साइड अगर अपन ले सकते हैं, और केन को कॉन्ट्रालैटरली ले सकते हैं, या एडजस्टमेंट ऑफ कैरी लोड अपन ले वहां पे कर सकते हैं। जो भी लोड आप बेसिकली कैरी कर रहे हो ऑन द अपर एक्सट्रीमिटी व्हाइल वॉकिंग। सिंगल लेग स्टांस कब होता है, जब आप बेसिकली वॉक करते हो ड्यूरिंग द गेट साइकिल। तो यूनिलैटरल वाइल्ड स्टांस में अगर फोर्सेस को अपने कम करना है स्पेशली इन द यूनिलैटरल स्टांस, तो आप वहाँ पे फोर्सेस को कम कर सकते हैं बाय दीज मीन्स। तो इसका बेसिकली फर्क क्या हो रहा है, अगर सपोज आप यहाँ पे कंपनसेटरी लीन कर रहे हो टुवर्ड्स वन साइड, सो इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर दोनों साइड में इक्वल है, लाइन ऑफ ग्रेविटी यहाँ से पास हो रही है, दोनों साइड का फोर्सेस इक्वल है। अगर मैं इधर की तरफ लीन कर रहा हूँ दैट मीन्स वेट मेरा इधर की तरफ आ रहा है, तो दिस लाइन ऑफ ग्रेविटी विल शिफ्ट टुवर्ड्स द वेट बेरिंग साइड। ठीक है, तो अगर टुवर्ड्स द वेट बेरिंग साइड अगर मेरा लाइन ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होगा तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो ऊपर से वेट आएगा दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्राउंड रिएक्शन फोर्स जो आएगा फ्रॉम द ग्राउंड, दोनों एक सेम लाइन में आ जाएंगे। और जब सेम लाइन में आएंगे तो यहाँ पे अबडक्शन टॉर्क विल मिनिमाइज्ड। तो इसी की वजह से बेसिकली क्या होता है, कंपनसेटरी लीन टुवर्ड्स द वेट बेरिंग साइड होगा, ये करने से फोर्सेस कम हो जाते हैं, दैट इज द स्पेशली अबडक्शन फोर्सेस। अब दूसरा जो मेथड है कि जिस कैसे और अपन कर सकते हैं बाय यूज ऑफ केन सी। जब अपन केन ये एक्सप्लेन कर ही दिया है मैंने। नाउ इफ वीकनेस अकर्स, सी दिस, अगर ये वेट बेरिंग हिप है और अगर यहाँ पे अपन बेसिकली लिफ्ट कर रहे हैं ये, तो ये पेल्विस हाइक होना चाहिए, नॉर्मल अबडक्शन टॉर्क जनरेट होना चाहिए। बट इफ नॉर्मल अबडक्शन टॉर्क इज नॉट देयर बाय द मीडियस मसल, ग्लूटियस मीडियस और अबडक्टर ऑफ द हिप, so pelvis will drop on the non weight bearing side because this is the weakness। तो उसकी वजह से क्या होगा, कंपनसेटरी लीन हो जाता है टुवर्ड्स दिस, बिकॉज ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उधर की तरफ ज्यादा लगेगा, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स उधर की तरफ लगेगा तो बॉडी टेंड टू फॉल दैट साइड। तो लाइन ऑफ ग्रेविटी को शिफ्ट करने के लिए वेट बेरिंग साइड में टिल्ट करना कंपनसेटरी लीन हो जाता है, जिससे कि फोर्सेस कम हो जाते हैं ना। इप्सिलैटरली अगर अपन केन यूज कर रहे हैं तो इप्सिलैटरली केन यूज करने का बेसिकली यहाँ पे अपन इसी पिक्चर में देखते हैं दिस सी। अब इप्सिलैटरली का मतलब ये है कि अगर मैं केन साइड इसी साइड में यूज कर रहा हूँ सेम साइड में, सो मुझे क्या करना है कि अगर मैंने इसको लिफ्ट किया है तो ये अबडक्शन पे जाना चाहिए। तो अगर मैंने सपोज इधर की तरफ ही केन यूज लिया तो अभी भी मैं सपोर्ट इधर की तरफ दे रहा हूँ, मैं यहाँ के अबडक्शन टॉर्क को कम नहीं कर रहा हूँ। मुझे अबडक्शन टॉर्क को कम करने के लिए इधर की साइड से लिफ्टिंग चाहिए या यहाँ पे सपोर्ट चाहिए। तो ये सपोर्ट के लिए अगर मैं इधर की तरफ से केन यूज करता हूँ तो वो फोर्सेस उतने कम नहीं होते हैं जितने होने चाहिए, स्लाइट फोर्सेस ही कम होंगे। लेकिन जब अगर केन को मैं यूज करता हूँ ऑन कॉन्ट्रालैटरल साइड, तो व्हाट विल हैपन, जब मैंने कॉन्ट्रालैटरल साइड पे यूज किया है तो यहाँ पे मैं बेसिकली जिस हाथ से मैंने जिस भी साइड पे केन को अगर होल्ड किया हुआ है तो व्हाट विल हैपन, डिप्रेसर विल एक्ट, जो शोल्डर डिप्रेसर है स्पेशली लैटिस मेडियस डॉर्साई। अब लैटिस मेडियस डॉर्साई का अगर अटैचमेंट अपन लेते हैं दैट इज प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल अटैचमेंट। तो प्रॉक्सिमल अटैचमेंट विल बी ऑन द ह्यूमरस एंड डिस्टल अटैचमेंट विल बी ऑन द इलिया क्रस्ट। नाउ डिस्टल अटैचमेंट ऑफ एट द इलिया क्रस्ट विल एक्ट और वो पेल्विस को लिफ्ट करता है ऊपर की तरफ। जब पेल्विस को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली अबडक्शन टॉर्क यहाँ पे मिनिमाइज हो गया, बिकॉज ये हेल्प कर रहा है ग्लूटियस मीडियस की अबडक्टर की। तो कंपनसेटरी लीन और अपोजिट साइड में अगर अपन ये ले रहे हैं दैट इज स्टिक which basically minimize the stress on the weight bearing side।
तो ये तो हो गया अबाउट द नॉर्मल एनाटॉमी और बायोमेकेनिक्स, किस तरह से बेसिकली अपने को स्ट्रेसेस को कम करना चाहिए। तो जब बेसिकली अपन ट्रीट करेंगे आर्थराइटिस, तो आर्थराइटिस में भी अपने को यही चीज़ों का बेसिकली ध्यान रखना होता है कि जो स्ट्रेसेस आपके वेट बेरिंग हिप पे आएंगे या जो स्ट्रेसेस आएंगे ऑन द इन्वॉल्व साइड, उनके स्ट्रेसेस को आप कैसे कम कर सकते हो। तो स्ट्रेसेस को कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे जो स्ट्रेस आ रहा है उसको मिनिमाइज अपन कर सकते हैं बाय यूज ऑफ केन और बाय यूज ऑफ अपर मसल्स, strengthening of the upper muscles, strengthening of the core muscles, or strengthening of the abductor muscles. Reduction of weight also helps, because अगर स्ट्रेसेस जो आते हैं ऊपर से अपर हाफ द बॉडी का, अगर आप वेट कम करते हैं तो नेचुरल है कि वहाँ पे स्ट्रेसेस भी कम आएंगे एक्टिविटी में। तो वो चीज़ें अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये बेसिकली नॉर्मल जो एनाटॉमी एंड बायोमेकेनिक्स है उसमें क्या रोल है। तो सबसे पहले ट्रीटिंग, अगर आप उसको ट्रीट कर रहे हो ऑस्टियोआर्थराइटिस को असेस कर रहे हो, तो ब्रीफ एनाटॉमी एंड बायोमेकेनिक्स पहले अपने को थोड़ा समझ लेना चाहिए, और इसीलिए ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई। देन नाउ एनी पैथोलॉजी, जैसे मैंने पहले लिया कि अगर कोई भी स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं इन बायोमेकेनिक्स ऑफ द फीमर और द एसिटाबुलम कैन रिजल्ट इन इंक्रीज इन द पैसिव फोर्सेस अबव नॉर्मल लेवल, जो नॉर्मल लेवल उससे। और ये तो गया अबाउट द बायोमेकेनिक्स। इफ बायोमेकेनिक्स अल्टर बायोमेकेनिक्स है तो, या इफ वीकनेस इज इन द डायनामिक स्टेबलाइजर्स। डायनामिक स्टेबलाइजर्स में मीन जो आइदर एनी मसल, आइदर फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, अबडक्टर, एडक्टर्स, तो उस कंडीशन में क्या क्या वहाँ पे हो सकते हैं। वहाँ पे बेसिकली आर्थराइटिस हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, बोनी एब्नॉर्मलिटी जो मैंने पहले भी देखा है कि एंगल इंक्रीज डिक्रीज है, तो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। अब इनमें जो सबसे मेन अपन डिस्कस करेंगे दैट इज द आर्थराइटिस। नाउ ऑस्टियोआर्थराइटिस को अगर अपन डिफाइन करते हैं तो osteoarthritis is basically chronic disorder of the synovial joint, progressive softening or disintegration of the articular cartilage होता है। जैसे as I said earlier कि ये degeneration as well as regeneration है, because degeneration होगा तो बॉडी का natural tendency है to regenerate the cartilage or bone, that's why formation of osteophytes are there. ना सिस्ट प्रोग्रेशन में कौन कौन सी चीजें अपने को बेसिकली वहाँ पे दिखेगी ना, न्यू बोन फॉर्मेशन, सिस्ट फॉर्मेशन, स्क्लेरोसिस इन द सबकॉन्ट्रल बोन, माइल्ड साइनोवाइटिस एंड कैप्सुलर फाइब्रोसिस, ये बेसिकली इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इंसिडेंस अगर अपन लेते हैं, प्रिवलेंस अगर लेते हैं तो विच इज अप्रॉक्स 22 to 39% इन द इंडिया। Most of the person above the 50 year or 60 means approx 50% of the population is affected with this arthritis. Now आवाज आ रही है? हेलो हेलो। यस सर, आवाज आ रही है सर। ओके 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 ओके। सो नाउ आर्थराइटिस अपने ले लिया है मेनली टू जॉइंट्स वेट बेरिंग की। अगर अपन बात करते हैं तो नी इज मोर कॉमन इन द इंडिया देन द हिप, सेकंड मोस्ट कॉमन जॉइंट ऑफ द आर्थराइटिस। वेरियस सेकेंडरी फैक्टर्स की अगर अपन बात करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो बेसिकली इसको आर्थराइटिस में रोल प्ले करते हैं आर्थराइटिस में, दैट इज द अपीयरेंस ऑफ द कैल्शियम कंटेनिंग क्रिस्टल्स इन द जॉइंट। इस्चेमिक चेंजेस बेसिकली होते हैं कि अगर नॉर्मल जॉइंट की अगर अपन बात करते हैं तो नॉर्मल जॉइंट पे इस्चेमिया कब होगा, जब कोई भी कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन कब होगा, जब वेट इंक्रीज होगा या स्ट्रेस इंक्रीज होगा इन द जॉइंट। सो उस पर्टिकुलर वजह से क्या होता है कि जो इस्चेमिक चेंजेस होंगे तो नॉर्मल न्यूट्रिशन टू द कार्टिलेज और बोन दैट विल हैम्पर्ड, और अगर वो होगा तो दैट विल लीड टू द osteonecrosis. ठीक ना, इंस्टेबिलिटी होगी। इंस्टेबिलिटी इज बिकॉज ऑफ द abnormal stresses will lead to the either laxity to the ligament, और अगर लिगामेंट पे laxity आ रही है, लिगामेंट पे टेंशन अगर आ रही है तो that will lead to the joint instability, और इन्फ्लेमेटरी, अगर prolonged इन्फ्लेमेटरी कोई भी मेडिकेशन अगर लेते हैं तो that will lead to any immunity related issues, so that will also hampered this joint health basically. Now ये बता ही दिया है मैंने कि this is basically degenerative as well as regenerative, और वो क्यों होता है regenerative, because cartilage भी regenerate होने की tendency होती है, but destruction is more, just like this. कौन कौन से basically pathogenic factors हैं arthritis के अंदर, तो ओबेसिटी हो गया, एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटीज हो गई जो अपन ने पहले लिया एनाटॉमिकल में, आइदर अल्टरेशन टू द एंगल्स ऑफ द एसिटाबुलम आइदर और फीमर, माइक्रो फ्रैक्चर्स, लॉस ऑफ जॉइंट स्टेबिलिटी, ट्रॉमा दैट विल लीड टू द अबनॉर्मल स्ट्रेसेस,
एजिंग जो नॉर्मल है, जेनेटिक और मेटाबॉलिक डिसीज अगर है तो वो भी अब नॉर्मल कार्टिलेज सेल ग्रो होगा। इन्फ्लेमेशन है तो भी उसमें चेंजेस आएंगे। इम्यूनिटी सिस्टम अगर एक्टिविटी तो उसमें भी अब नॉर्मल कार्टिलेज बेसिकली रहेगा। दोनों चीज़ों में क्या है कि जो कार्टिलेज है वो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होगा, दैट मीन्स जो नॉर्मल कार्टिलेज होना चाहिए वो उसी तरह से नहीं रहेगा, और दैट विल लीड टू द बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ द कार्टिलेज। एंड ब्रेक डाउन अगर कार्टिलेज का हो रहा है तो दैट विल लीड टू सबकॉन्ड्रल बोन स्क्लेरोसिस, अगर वहाँ पे ऑस्टियोनेक्रोसिस हो रहा है तो रिडक्शन इन द शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द बोन बिकॉज ऑफ द स्क्लेरोसिस, थिकनिंग, increased stresses basically between the bone and cartilage interface होता है, then worsen the joint degeneration और breaking of the cartilage और loose bodies। जब basically cartilage अगर break down हो रहा है, sclerosis और subchondral bone का erosion हो रहा है, तो बॉडी का टेंडेंसी होता है कि नॉर्मली उसको वापस से हील करे। तो दैट इज द प्रोसेस जहाँ पे रीजनरेशन स्टार्ट होता है। बट जो रीजनरेशन है वो उस मैनर में नहीं होता जो नॉर्मली होना चाहिए, इसलिए डिजनरेशन सी दिस। तो कार्टिलेज ब्रेक डाउन जो है वो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज इज बेसिकली मोर देन द एनाबॉलिक एक्टिविटीज। सो लॉस ऑफ द बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ द हेमोस्टैटिक इन द कार्टिलेज, बिकॉज जैसे मैंने अर्लियर की स्ट्रेसेस अगर होंगे तो उसकी वजह से बेसिकली क्या होगा, सिंथेसिस इज लेस एंड डिग्रेडेशन विल बी मोर, so that will lead to the destruction of the cartilage basically। now अगर कार्टिलेज डिस्ट्रक्ट अगर हो गया है तो सिम्टम्स में जैसे सबसे मेन जो अर्लियर सिम्टम आता है which is pain in the especially in the groin region area, may be referred to the anterior thigh, buttocks or the knee, because knee और hip का जो dermatomes है वो basically dermatomal area will be same, so that's why hip pain will be sometimes you'll feel in the knee also। पेन अगर है तो टिपिकल बेसिकली कंप्लेंट पेशेंट बोलता है कि जब मैं एक्टिविटी करता हूँ या एक्सर्शन करता हूँ तो पेन इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जैसे मैं रेस्ट करता हूँ तो वो पेन चला जाता है। जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस होगा तो वो जो बेसिकली पेन फील हो रहा था ऑन एक्सर्शन ओनली वो पूरे टाइम ही फील होता है, और नाइट में भी फील होगा, just because of the alteration in the mechanics or tissues distractions, इस वजह से वो पूरे टाइम में फील होगा। then limping वहाँ पे होती है because of the pain, means antalgic type of gait will be present। now several possible causes of pain जो और है उसके अलावा तो mild synovial inflammation है, capsular fibrosis है, stretching हो रही है, because pain जो हो रहा है that is inflammatory reaction कहाँ पे होगी, in the joint capsule will lead to the excessive secretion of the synovial inside the joint, or which causes stretching to the adjacent structures। और adjacent structures में basically pain receptors होते हैं, nociceptor receptors will activate और उसकी वजह से basically pain feel होगा। तो in acute phases main aim जो अपना रहता है, जब जैसे अपन आगे डिस्कस करेंगे कि उस एक्यूट फेज को कम करने मींस एक्यूट पेन को कम करने के लिए पोजीशन जो होगी वो इस तरह की पोजीशन होगी वो जो टेंशन क्रिएट हो रही है ऑन द एडजेसेंट स्ट्रक्चर विल बी लेस। नाउ सेकंड मोस्ट कॉमन सिम्पटम विल बी स्टिफनेस। स्टिफनेस अगर है तो स्टिफनेस स्पेशली होती है जब इनएक्टिविटी की वजह से पेशेंट स्पेशली कंप्लेन करता है कि जब मैं थोड़ी देर बैठता हूँ या थोड़ी देर के बाद जब मैं उठता हूँ तो मुझे थोड़ी देर तक पेन रहता है, लेकिन जैसे मैं एक्टिविटी स्टार्ट करूँगा थोड़ा उसके बाद से वापस से नॉर्मल हो जाता है। दिस इज द बेसिकली इनएक्टिविटी की वजह से। बट इन लेटर स्टेजेस वो हमेशा ही वो स्टिफनेस रहेगी। स्वेलिंग प्रेजेंट होगी इंटरमिटेंट बिकॉज ऑफ द इफ्यूजन और कैप्सुलर थिकनिंग, बट वो डीप होती है। डिफॉर्मिटी यहाँ पे प्रेजेंट होगी, डिफॉर्मिटी बिकॉज ऑफ द अल्टर्ड मैकेनिक्स, दैट मीन्स कोई भी एक ग्रुप है वो टाइटनेस की तरफ चला जाएगा, दूसरा जो ग्रुप है दैट विल गो इन वीकनेस। तो जिधर टाइटनेस जाएगा उधर कैप्सुलर टाइटनेस भी हो जाएगी, कैप्सुलर कंट्रैक्शन भी हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, दैट विल लीड टू द डिफॉर्मिटी। देन लॉस ऑफ फंक्शन में ये कि अगर वॉकिंग अपन कर रहे हैं तो वॉकिंग विल बी हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ द पेन, दैट मीन्स लिम्ब प्रेजेंट होगा। स्टेयर क्लाइंबिंग विल बी डिफिकल्ट। वॉकिंग का जो अगर जहाँ पे ये रहता है कि मैं इतने डिस्टेंस पे चल सकता हूँ उतने डिस्टेंस पे, तो वो बेसिकली वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी कि शॉर्ट डिस्टेंस पे ही वो चल पाएगा, उसके बाद उसको पेन होगा। देन इनएबिलिटी टू परफॉर्म एवरीडे टास्क लाइक सिटिंग और देन ड्रेसिंग और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में बेसिकली जो कर रहा था डेली, तो बिकॉज ऑफ द पेन वो चीज़ें वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो एक्टिविटी करेंगे तो जैसे एज आई सेड अर्लियर की
एक्टिविटी करते ही पेन आता है, ऑन एक्सर्शन पेन आता है, तो वो चीज़ बेसिकली यहाँ पे अफेक्ट करेगी उसकी डे टू लाइफ को. नाउ हाउ विल यू एग्जामिन कि किस कौन सी, तो एग्जामिनेशन अगर अपन कर रहे हैं यहाँ पे, तो एग्जामिनेशन में बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन नॉर्मली अपन करते हैं. वन इज रेडियोलॉजिकल एंड फिजिकल. फिजिकल एग्जामिनेशन में फिजिकल चीज़ें अपन यहाँ पे चेक करते हैं, दिस लाइक दिस पेशेंट हिस्ट्री लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, पाल्पेशन करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं. फिजिकल एग्जामिनेशन में जब अपन पेशेंट हिस्ट्री ले रहे हैं, तो पेशेंट हिस्ट्री के बारे में दैट इज द बेसिकली सब्जेक्टिव एनालिसिस और सब्जेक्टिव असेसमेंट, which contains basically about the information about the subject, information about the patient, like कि उसकी कंप्लेंट क्या है, उसका जो भी उसको तकलीफ हो रही है वो कब से है, जो पेन है उसका नेचर क्या है, उसका साइट क्या है, और कौन सा एग्रेवेटिंग फैक्टर है, कौन सा रिलीविंग फैक्टर है. अलॉन्ग दिस उसकी पर्सनल हैबिट्स क्या हैं, दैट इज़ द पर्सनल हिस्ट्री. देन पर्सनल के बाद में अपन जाते हैं उसके फैमिली में और किसी को नहीं है, बिकॉज हेरिडिटरी भी एक कॉज वहाँ पे होता है, तो उसकी भी अपन वहाँ पे उससे हिस्ट्री लेते हैं. देन फैमिली, देन सोशल, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, एनवायरमेंटल कैसा है, उसका हेल्थी इशू किस तरह से. तो अबाउट द पेशेंट ईच एंड एवरीथिंग अपन उससे पूछते हैं. दैट इज फैमिली हिस्ट्री, सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, पर्सनल. ये तो हो गया अबाउट द सब्जेक्ट एनालिसिस, सब्जेक्टिव. देन ऑब्जेक्टिव अगर अपन आ रहे हैं अबाउट द कंडीशन, तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के अंदर अपन बेसिकली क्या चेक करते हैं, ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली अपने को पेशेंट को देखना होता है कि वो कैसे चल रहा है. मीन्स उठने बैठने में अगर वो पेन उसको फील होगा तो वो हेजिटेट करेगा, या उसको वो उठने का पैटर्न अपने को बेसिकली ऑब्जर्व करना होता है कि वो सपोर्ट के साथ उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, या बिना उसके उठ पा रहा है. Then which type of gait it is, either antalgic or tendon bug because of the weakness. Swinging type का gait है, stiff अगर है joint तो stiff में swinging type of basically gait present होगा. Shortening of the limb तो नहीं लग रहा है, muscle atrophy तो नहीं basically observe हो रही है, flexion contracture तो नहीं दिख रहा है. Then if patient is removing socks or shoes or socks, तो उसमें बेसिकली उसको कोई दिक्कत तो नहीं फील हो रही है, या फिर वो किसी असिस्टेड डिवाइस के साथ तो नहीं आया है लाइक वॉकर और स्टिक. ये सारी चीज़ें बेसिकली अपने को ऑब्जर्व करनी होती है जब पेशेंट को अपन एग्जामिन कर रहे होते हैं. नाउ पाल्पेशन अगर अपन करते हैं तो पाल्पेशन में टेंडरनेस चेक करना होता है, देन वार्मथ चेक करना होता है. Warmth is basically to differentiate whether it is inflammatory, means whether it is other condition, to differential diagnosis के लिए. Now trigger points में कि because of the muscle tightness कहीं पे वो pain तो नहीं आ रहा है, जो pain वो basically feel कर रहा है, और peripheral pulses for the circulation. Now examination में अगर अपन लेते हैं तो key element of the physical examination will include basically assessment of the hip range of motion, especially प्रोवोकेटिव मैनूवर, बिकॉज जो भी अगर कोई भी कंडीशन हो रही है अराउंड द हिप, दैट मीन्स सर्टेन चीज़ें अपने को इस तरह से करनी होगी कि वो पेन उसको एग्रीवेट तो नहीं हो रहा है, तो दैट विल बेसिकली रूल आउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस, जिसमें अपन बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट द आर्थराइटिस ओनली. और गेट एनालिसिस, जिसमें गेट के बारे में अपन यहाँ पे ले रहे हैं कि गेट किस तरह से वो चल रहा है, या कौन सा टाइप का गेट बेसिकली वहाँ पे प्रेजेंट है. हिप रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्टेड है या नहीं है, किस रेंज पे, दैट मीन्स अगर एग्जामिन अपन करेंगे तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, एंड फील, एसेसरी मोशंस, ये सारी चीज़ें बेसिकली अपन को रेंज ऑफ मोशन में चेक करना होता है. गेट ले लिया है. देन मसल बार, अगर मसल में अपन चेक कर रहे हैं स्ट्रेंथ तो कितनी है. न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन फॉर एनी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और लाइक रेफर्ड पेन और सो, और फंक्शनल स्टेटस की कौन सी चीज़ें उसके अफेक्टेड है, कि स्ट्रेट क्लाइंबिंग या आउटिंग या सॉक्स सिटिंग्स, और ये चीज़ें सारी. तो इसमें अगर अपन लेते हैं तो फंक्शनल स्टेटस में तो एक स्केल अपन बेसिकली यहाँ पे लेते हैं जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी फंक्शनल स्केल. इसमें एक्टिविटीज़ के अंदर बेसिकली क्या होगी कि यूजुअल वर्क, हाउस वर्क और स्कूल एक्टिविटीज़ कि कौन सी एक्टिविटी में बेसिकली उसको एक्सट्रीम डिफिकल्टी हो रही है, और थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो रही है, मॉडरेट हो रही है, या नहीं हो रही है थोड़ी बहुत, तो उसको बेसिकली यहाँ पे अपन स्कोरिंग करते हैं. ये स्कोर को बेसिकली अपन चेक करते हैं कि ये स्कोर जितना जो क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, हॉबीज के, वो उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, इन एंड आउट ऑफ द बाथ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही है, वॉकिंग बिटवीन द रूम्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पुटिंग सॉक्स में, स्क्वाटिंग में, लिफ्टिंग,
तो दीज आर द बेसिकली क्वेश्चन जिसको पेशेंट को अपने को पूछना होता है और उसके आंसर के अकॉर्डिंग वहाँ पे स्कोर होता है. तो इफ इट इज 0 मीन्स इफ इट इज स्कोर इज 80 से अगर वो लेस है 0 टुवर्ड्स 0 दैट मीन्स एक्सट्रीम प्रॉब्लम. इफ इट इज टुवर्ड्स द 80 दैट मीन्स कंडीशन इज नॉर्मल. सो दिस इज द बेसिकली फंक्शनल स्टेटस के लिए स्केल अपन चेक करते हैं कि कैसे अपने को पेशेंट को का फंक्शन उसके अकॉर्डिंग ही पेशेंट का रिहेबिलिटेशन प्लान होना चाहिए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पे वो अफेक्ट हो रही है. तो और दैट बेसिकली गिव एन आइडिया अबाउट द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज और ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ द डिजीज जो अपन आगे की तरफ बेसिकली देखेंगे ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 और 4. सेकेंड जो बेसिकली अपन लेते हैं दैट इज द वॉमिक स्केल. अगेन वॉमिक स्केल में भी अपन वहाँ पे एक्टिविटीज देखते हैं पेन स्टिफनेस एंड फिजिकल फंक्शन. पेन अगर है तो पेन वॉकिंग में है या स्ट्रेट क्लाइंबिंग में है या फिर नाइट में रेस्ट में वेट बेयरिंग पे कौन से टाइम पे उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे स्कोर लेते हैं. स्कोर में भी अगर 0 है दैट इज नन पेन, 1 इज स्लाइट, 2 इज मॉडरेट, 3 इज वेरी एंड 4 इज एक्सट्रीमली. यहाँ पे जितने ज़्यादा स्कोर आएगा उसका मतलब है कि उसको प्रॉब्लम ज़्यादा है. जितना स्कोर कम आएगा दैट मीन्स इसको प्रॉब्लम नहीं है. सो दीज आर द बेसिकली स्केल जिससे अपन उसका फंक्शनल स्टेटस चेक करते हैं. उसके अलावा जो और एग्जामिनेशन अपन करते हैं दैट इज द प्रोवोकेटिंग मैनूवर. प्रोवोकेटिंग मैनूवर्स में बेसिकली अपन स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करते हैं दैट विल गिव आइडिया टू द एनी पैथोलॉजी इन द जॉइंट. दैट मीन्स इंट्राआर्टिकुलर पैथोलॉजीज इंक्लूडिंग ओए अगर वहाँ पे है तो उसके लिए बेसिकली अपन टेस्ट करते हैं सर्टेन टेस्ट दैट contains that are the basically Faber test, Stinchfield test, scoring test, leg roll test, Evel test. तो ये बेसिकली जो टेस्ट हैं ये परफॉर्म करते हैं. इसमें किस किस तरह से रहेगा अगर अपन फेबर टेस्ट ले रहे हैं दिस इज द फेबर टेस्ट. तो इन दैट पेशेंट की पोजीशन सुपाइन है. फॉर फिगर ऑफ 4 में बेसिकली यहाँ पे अपन ने जिस भी साइड को अपन चेक कर रहे हैं उसको अपन ने रखा है. ना थेरेपिस्ट क्या करेंगे जो अपोजिट साइड का एएसआई है उसको फिक्स करेंगे एंड फ्रॉम द नी वर्टिकली डाउन प्रेशर क्रिएट वहाँ पे अप्लाई करेंगे. जब ये प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं तो इफ पेन इज इन द सेम साइड इप्सिलैटरल साइड अगर पेन फील होगा दैट मीन्स पैथोलॉजी इन द दैट एरिया मीन्स इंट्राआर्टिकुलर hip pathology present है. If pain occurs in the contralateral side back of the this means in the gluteal region on the contralateral side that means that will confirm the SI joint pathology not hip joint pathology. सेकेंड जो टेस्ट अपन बेसिकली ले रहे हैं उसमें अपन ने क्या किया है पेशेंट को सुपाइन अपन ने लिया है. पेशेंट के डिस्टल लेग से अपने को होल्ड करना है. पेशेंट को एसएलआर करने को बोलना है लेकिन एसएलआर में बेसिकली पेशेंट का जो एसएलआर जब कर रहा है उसको अपन दैट मीन्स हिप फ्लेक्शन अगर कर रहा है तो हिप फ्लेक्शन को रेसिस्ट करना है. अगर रेसिस्ट करेंगे तो पेशेंट पेन फील करेगा इन द हिप एरिया दैट मीन्स इंट्राआर्टिकुलर पेन पेशेंट को फील होगा. तो दिस इज बेसिकली प्रोवोकेटिंग टेस्ट. देन थर्ड वन इज स्कोरिंग टेस्ट. इस इन दिस टेस्ट पेशेंट को अपन ने यहाँ पे क्या किया है यहाँ पे फुल फ्लेक्शन पे पेशेंट को लिया है देन वर्टिकली डाउन प्रेशर दे रहे हैं विद इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन. इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन बेसिकली आप ग्राइंडिंग कर रहे हो विद इन द जॉइंट. So what will happen if any lateral pathology or hip joint pathology तो पेशेंट का टेस्ट पॉजिटिव आएगा मीन्स पेशेंट को पेन होगा इन द इंट्राआर्टिकुलर रीजन. नाउ लेग रोल टेस्ट. लेग रोल में टेस्ट में बेसिकली अपन क्या करेंगे पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है और लेग को इंटरनली और एक्सटर्नली रोटेट करेंगे. इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन से बेसिकली हो क्या रहा है जो हेड ऑफ द फीमर है वो एसिटाबुलम के अंदर बाहर की तरफ मूव होगा. दैट तो अगर इफ एनी पैथोलॉजी अराउंड द हिप जॉइंट तो that will initiate pain. Evel test and leg rolling test तो पहले बता दिया. इसमें बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं पेशेंट को अपन ने यहाँ पे सुपाइन पोजीशन पे लिया है लेग को लिफ्ट किया है होल्ड किया है फ्रॉम द एंकल. नाउ जो हील है हील ऑफ द दैट टेस्टिंग लेग उस पे अपन यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे स्ट्राइक करेंगे यहाँ पे उस पे मारेंगे. जैसे अपन मारेंगे तो एक्सियल लोडिंग होगी टुवर्ड्स द हिप. तो इफ पेन अकर्स दैट मींस दैट टेस्ट इज पॉजिटिव और दैट विल बेसिकली लीड कंफर्म द एनी पैथोलॉजी इन द इंट्राआर्टिकुलर रीजन. नाउ दीज आर द बेसिकली टेस्ट जिससे अपने को वहाँ पे पता लगेगा कि जॉइंट के अंदर कोई भी पैथोलॉजी है या नहीं है. डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए अपन को जो देखना होता है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपन कौन कौन सी कंडीशन से कर सकते हैं बिकॉज पेन जो हो रहा है वो है इन द ग्रॉइन रीजन.
तो जरूरी नहीं है आर्थराइटिस की वजह से हो। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में यहाँ पे एवियन भी हो सकता है, रोमेटेड आर्थराइटिस भी हो सकता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर इन द फीमर भी हो सकता है, एनेरिज्म ऑफ द एर्टा भी हो सकता है, पीआईडी भी हो सकता है, देन लंबार रेडिकुलोपैथी, हर्निया, बर्साइटिस। इन सारी चीज़ों के लिए फिर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन होते हैं। बट अगर अपने को कंफर्म करना है आर्थराइटिस, तो अपने को इसका जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन करना होता है दैट इज द रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिससे अपने को बेसिकली डिजेनरेशन का पता लगेगा कि इफ जॉइंट इज degenerated, cartilage is degenerated or not. So this radiological examination, this is the normal x-ray of the hip. In this जो चीजें बेसिकली अपने को यहाँ पे देखनी है, दिस इज द जॉइंट स्पेस जो नॉर्मली मेंटेन होना चाहिए, विच इज अप्रॉक्स 1.1 to 2 to 3 mm और 3 mm. सो ये बेसिकली यहाँ पे मेंटेन रहना चाहिए। अगर आप ये क्लियरली देख रहे हो तो दिस मार्जिन विल दिस हेड ऑफ द फीमर एक शार्प लाइन यहाँ पे दिख रही है। तो जो भी यहाँ पे चेंजेस होंगे, सब कॉन्ट्रल अगर स्क्लेरोसिस अगर होगा तो वो स्क्लेरोसिस इस पर्टिकुलर मार्जिन पे होता है। यहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन होता है, ऑस्टियोफाइट्स इन द मार्जिन्स बेसिकली बनते हैं इन द एसिटाबुलम एज वेल एज ऑन द फीमर, दिस पर्टिकुलर एरिया और दिस पर्टिकुलर एरिया। So this is basically anterior posterior view, this is the lateral view in a frog leg position. So ये basically आप इसके views है। तो हमेशा जब भी आप एग्जामिन करते हो रेडियोलॉजी के थ्रू, तो always take two views to check the two dimension, because this is the two dimensional image. तो यहाँ पे अपने को दोनों साइड से जॉइंट को देखना जरूरी है, because in that particular region हो सकता है आप इसके पीछे वाली चीज को नहीं देख पाओ, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर व्यू ये नहीं दिखेगी, बट इस कंडीशन में आप ये वाला व्यू और ये वाला व्यू दोनों देख सकते हो इन द लैटरल व्यू, बट यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर वाला चीज नहीं दिखेगी। तो इसलिए ऑलवेज टेक टू व्यूज या जो भी अपन चेक कर रहे हैं तो उस कंडीशन में। नाउ व्हाट विल, इसमें अगर अपन नॉर्मल जो एक्सरेज ले रहे हैं इसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो टोरिस क्लासिफिकेशन होती है फॉर हिप आर्थराइटिस। उसमें ग्रेडिंग सिस्टम अपन देते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम में 0 1 2 3 बेसिकली यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम होता है। उसको कैसे अपन क्लासीफाई करेंगे, इफ ग्रेड 0 दैट इज नो साइंस ऑफ आर्थराइटिस, दैट मींस हेल्दी जॉइंट, जो अपन ने जैसे पहले देखा। इफ इट इज ग्रेड 1 स्लाइट नैरोइंग ऑफ द जॉइंट स्पेस कंपेयर टू अदर साइड, अपन वहाँ बेसिकली लेते हैं। स्लाइट लिपिंग ऑफ द जॉइंट मार्जिन्स होंगे, देन स्लाइट स्क्लेरोसिस भी होगा इन द फेमरल हेड और आइदर इन द एसिटाबुलम। ग्रेड 2 अगर अपन लेते हैं तो स्मॉल सिस्ट, अगर यहाँ पे आप बेसिकली देख पा रहे हो तो दिस, और इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हैं स्क्लेरोसिस। उसके बाद अगर अपन यहाँ पे आते हैं तो ये और ज़्यादा इस पे चेंजेस बेसिकली दिखेंगे। तो ग्रेड 2 में सिस्ट फॉर्मेशन थोड़े और बढ़ जाते हैं एट द फेमरल हेड एंड एसिटाबुलम, नैरोइंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो बेसिकली शेप है स्पेरिकल शेप ऑफ दिस, वो भी क्या होगी, स्पेरिकल शेप भी लॉस्ट हो जाएगी। देन ग्रेड 3 अगर अपन ले रहे हैं तो सीवियर डिस्ट्रैक्शन, सीवियर नैरोइंग, सीवियर डिफॉर्मिटी और लार्ज सिस्ट बेसिकली वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो उसमें और दूसरा जो बेसिकली क्लासिफिकेशन अगर अपन ले रहे हैं दैट इज क्रॉफ्ट क्लासिफिकेशन एज एंड कैलग्रेन्स लॉरेंस क्लासिफिकेशन, केयर स्केल जिसको अपन बोलते हैं। उसमें भी सेम यही है कि अगर उसके अकॉर्डिंग अपन क्लासीफाई करेंगे आर्थराइटिस तो 0 to 5 दैट मीन्स नॉर्मल को इंक्लूड करके 6 ग्रेडिंग सिस्टम दिया हुआ है, और अकॉर्डिंग केएल इज 5 ग्रेडिंग सिस्टम। इससे बेसिकली अपन पता लगाते हैं कि जो आर्थराइटिस है दैट इज माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर इन सिंपल फॉर्म। बट इन रेडियल, ये जो भी चीजें क्लासिफिकेशन जो अपन ले रहे हैं दैट इज रेडियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द रेडियोलॉजी ये सारी चीजें क्लासिफाई की हुई है। नाउ दिस, अगर अपन पहली इमेज ले रहे हैं तो जहाँ जहाँ पे मार्जिन लिए हुए हैं ये बेसिकली एरिया होते हैं जहाँ पे अपने को देखनी होती है। मीन्स सबकॉन्ड्रल सिस्ट अगर आपको देखना है तो वो यहाँ पे बेसिकली दिखेगा, सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस होगा तो वो आपको इस जगह पे बेसिकली दिखेगा। नाउ ऑस्टियोफाइट्स अगर आप बेसिकली देख रहे हैं तो वो ऑस्टियोफाइट्स आपको इस मार्जिन पे रहेंगे, एट द मार्जिन होंगे और जॉइंट स्पेस। तो सेम चीज अगर अपन यहाँ पे देख रहे हैं तो ये यहाँ पे देखना होगा, इस मार्जिन पे बेसिकली देखना होगा, इस मार्जिन पे देखना होगा, और एजेस पे अगर अपन यहाँ पे ले रहे हैं तो ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि कौन कौन से जगह पे अपने को ऑस्टियोफाइट कितना नैरोइंग है, कितना ग्रेडिंग है। जैसे कि यहाँ पे अपन देख सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर एक्सरे, अगर आप यहाँ देख रहे हो तो सी द नैरोइंग ऑफ द जॉइंट स्पेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द हेड ऑफ द फीमर एज वेल एज एसिटाबुलम। तो दोनों तरफ आर्थराइटिस है, बट
the right side will be the right side is more than the left side. तो दोनों में बेसिकली आप डिफरेंस देख सकते हो कि किस तरह से। यहाँ पे अगर अपन देख रहे हैं ये MRI इमेजेस है, इसमें बेसिकली आपको इरोजन और दिस सबकॉन्डल इरोजन और ये बेसिकली दिखेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो दिस द शार्पनिंग, जो ये चीज़ की बेसिकली अगर अपन बात कर रहे हैं तो यही सेम चीज़ यहाँ पे अपन बेसिकली देख सकते हैं। ये पूरे चेंजेस बेसिकली देख सकते हैं। तो दीज आर द बेसिकली रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिससे अपन कंफर्म करते हैं कि इससे अपने को क्या बेसिकली पता लगता है। इससे अपने को ये पता लगता है कि अपने को ट्रीटमेंट में क्या चीज़ें ऐड करनी है, या अपने को रेफरल करना है कि नहीं करना है, या फिर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो कंजर्वेटिव मेथड से हो सकता है या फिर उसको सर्जिकल इंटरवेंशन लेना पड़ेगा। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या से अपने को ये मतलब पर्टिकुलर एक्सरे देखने का ये एडवांटेज होता है। नाउ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम अगर अपन ले रहे हैं तो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कंटेन्स बेसिकली, इसमें जो बेसिकली एम है अपना वो सिम्टम को रिलीव करना है, फ्लेक्सिबिलिटी गेन करनी चाहिए अपने को स्टैटिक एंड डायनामिक मसल स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए, रीएजुकेशन टेक्निक्स, पेन को रिडक्शन टेक्निक्स अपने को बेसिकली पेशेंट को बतानी चाहिए, डिसेबिलिटी जो हो रही है उसको मिनिमाइज करना चाहिए, जॉइंट प्रोटेक्शन और देना चाहिए। तो जॉइंट प्रोटेक्शन कौन कौन सी चाहिए, पेशेंट एजुकेशन की कैसे वो अपना ध्यान रखे, या होम एक्सरसाइज प्रोग्राम में किस तरह से उसको करना चाहिए। तो उस पे बेसिकली अपन जो ले रहे हैं फेजेस, तो फेजेस में बेसिकली कि क्या अपन यहाँ पे करेंगे, डिक्रीज पेन एंड स्वेलिंग। तो प्राइस प्रोटोकॉल में यहाँ पे कोई भी चीज़ें अपन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर अपन क्रायो यूज कर रहे हैं तो क्रायो में प्रोटेक्शन हो गया, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन एंड एलिवेशन हो गया। ना अलॉन्ग दिस इज इन द एक्यूट केस। उसके बाद जैसे जैसे ये फेस सबसाइड हो जाएगा एक्यूट फेस, उसके बाद रिस्टोरेशन ऑफ रेंज ऑफ मोशन अपन करेंगे, नॉर्मल आर्थ्रोकाइनेमेटिक मेंटेन करेंगे। नॉर्मल आर्थ्रोकाइनेमेटिक मेंटेन किस तरह से होगी, बाय आइदर स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और बाय इंक्रीजिंग रेंज ऑफ मोशन। वो वेरियस मीन से अपन कर सकते हैं लाइक मैनुअल थेरेपीज। स्ट्रेंथ रेंज ऑफ मोशन आ गई है, नॉर्मल काइनेमेटिक्स मेंटेन हो गई है, तो उसके बाद मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के थ्रू। जब मसल स्ट्रॉन्ग हो गया है तो न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल इंक्रीज करेंगे। जब न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल इंक्रीज हो गया है तो फंक्शनल और स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग बेसिकली अपन उसको देंगे। तो वो देने के लिए अपने को क्या करना होता है, अपने को यहाँ पे मोडालिटीज यूज करनी है, थेरापेटिक मोडालिटीज फॉर द रिलीफिंग ऑफ पेन एंड द स्वेलिंग। थर्मोथेरेपी भी अपन यूज कर सकते हैं और क्रायोथेरेपी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। इफ इट इज क्रॉनिक कंडीशन तो क्रॉनिक में बेसिकली थर्मोथेरेपी ज़्यादातर यूज करते हैं बिकॉज दैट बेसिकली रिलीव्स द क्रॉनिक स्टिफनेस। बट इन केस ऑफ एक्यूट केस वहाँ पे बेसिकली अपने को क्रायो यूज करना है, और क्रायो से बेसिकली क्या होगा, जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है दैट विल सबसाइड। फॉलो उसके बाद में जो बेसिकली अपन करेंगे क्रायो के बाद में, दैट इज जेंटल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, वो आगे की तरफ रहेगी। हाँ, इसमें जो चीज़ बेसिकली अपने को ध्यान रखना है कि जब एक्यूट फेज है यहाँ पे आइसोटोनिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, एरोबिक एक्सरसाइज शुड बी डिसग्रेडेड, वो शुड बी अवॉइडेड, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए बिकॉज दैट विल इंक्रीज द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। बट जैसे एक्यूट फेज कम हो जाएगा, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम बेसिकली अपन प्रोग्रेस करेंगे टू रिस्टोर रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन एंड कंडीशनिंग। तो उसके लिए अपने को क्या करना होता है, उसके लिए सर्टेन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस भी बेसिकली अपन कर सकते हैं टू मिनिमम टू इन फेज 1। उसके अंदर PEMF ले सकते हैं, टेंस अपन दे सकते हैं, दैट विल बेसिकली इनहांस द कार्टिलेज रीजनरेशन। PEMF बेसिकली टेंस जो बेसिकली पेन है, पेन रिसेप्टर्स उसके लिए कम करने के लिए अपन यूज होता है, लेकिन इन सम स्टडी सेज दैट इज बेसिकली प्लेसिबो इफेक्ट। सो और नेक्स्ट जो अपन बेसिकली लेते हैं दैट इज द मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी में मोबिलाइजेशन टेक्निक्स होती है। मोबिलाइजेशन टेक्निक में डिफरेंट थेरी को आप इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक मेटलैंड और दिस कैल्टरबॉन और मलिगन। तो दिस जो बेसिकली यहाँ पे पिक्चर्स है दैट आर द मलिगन टेक्निक्स। और मोबिलाइजेशन विद बेल्ट, दिस इज बेसिकली lateral glide, this is longitudinal traction in long axis, this is the anterior glide, this is two therapist technique, longitudinal traction with the inferior as well as medial glide. So ये सारी जो बेसिकली मैनुअल थेरेपीज, और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे रेंज ऑफ मोशन, पेन, इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीज़ों को अपन कम कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली अपन वहाँ पे अप्लाई करते हैं। जब स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग अगर अपन स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर रेंज ऑफ मोशन, तो
स्लाइट वार्म अप अपने को करना चाहिए। स्लाइट वार्म अप के लिए आइदर या तो साइकिल यूज कर सकते हैं, बाइसिकल, और आइदर मॉइस्ट हीट एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑन द स्टिफ मसल प्रायर टू द स्ट्रेचिंग। ना स्ट्रेचिंग में सेल्फ स्ट्रेचिंग अपन सिखा सकते हैं। सेल्फ स्ट्रेचिंग में क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेचिंग सिखा सकते हैं, आईटी बैंड और डीएफएल स्ट्रेचिंग सिखा सकते हैं, हैमस्ट्रिंग, एडक्टर्स और फ्लेक्सर स्ट्रेचिंग। उसकी कुछ पिक्चर्स यहाँ पे है। सेल्फ स्ट्रेचिंग में दिस इज द बेसिकली क्वाड्रिसेप्स, दिस इज इलियोइस, नाउ दिस इज एडक्टर, डीएफएल। और जो स्ट्रेसेस हैं जॉइंट के ऊपर उनको बेसिकली अपन कम कर सकते हैं। तो वो कम बेसिकली जो जिस चीज़ से अपन कर सकते हैं दैट इज द वाटर वॉकिंग, मींस हाइड्रोथेरेपी, एक्वेटिक थेरेपी अपन बेसिकली यूज कर सकते हैं। और ये एक्वेटिक थेरेपी में अपन स्विमिंग करवा सकते हैं, वाटर वॉकिंग हो गया, स्टेशनरी साइकिल टू अवॉइड टू मिनिमाइज द स्ट्रेस ऑन द जॉइंट, वॉकिंग विद और विदाउट केन, स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो अपन ने पहले ले लिया है। पेन को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को अपने को क्या एडवाइस करना है कि जो भी एक्टिविटी वो करे वो अकॉर्डिंग टू द पेन कंट्रोल करे और वॉकिंग एड यूज करे। और अगर इन सारी चीज़ों पे भी अगर नहीं हो रहा है तो उसके बाद में कंसल्ट टू डॉक्टर टू कंट्रोल द पेन। नाउ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस अगर अपन कर रहे हैं तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में कोर स्टेबिलिटी बेसिकली अपने को करनी चाहिए। कोर स्टेबिलिटी इसलिए भी करनी चाहिए बिकॉज जो भी स्ट्रेसेस आ रहे हैं फ्रॉम द अपर हाफ, तो इफ कोर इज स्ट्रांग तो जो स्ट्रेसेस आएंगे ऑन द हिप जॉइंट वो बेसिकली मिनिमाइज हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे कोर वीक रहेगा तो डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा है ऑन द जॉइंट और वो और ज़्यादा टॉर्क जनरेट करेगा, दैट विल लीड टू द अबनॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन द जॉइंट। तो इसलिए अपने को कोर स्ट्रेंथनिंग भी बेसिकली करना चाहिए। देन रेंज ऑफ मोशन टू मेंटेन द फुल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस टू मिनिमाइज द एनी डिफॉर्मिटी और एनी कॉन्ट्रैक्चर्स। देन फॉर फंक्शन एज वेल एज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में जो चीज़ अपने को इंक्लूड करना चाहिए उसमें जैसे कि कोर तो अपना हो ही गया, उसके बाद हिप एंड नी एंकल एक्सरसाइजेस करना चाहिए। स्ट्रेचिंग जो अपने पहले देख ही लिया कौन कौन सी स्ट्रेचिंग करेंगे, किस तरह से यहाँ पे बेसिकली कोर को एक्टिव करना चाहिए। कोर एक्टिवेशन में जो चीज़ अपन लेते हैं दैट इज बेसिकली पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज में सुपाइन पोजीशन लेंगे। सुपाइन पोजीशन के अंदर पेशेंट को अपन बोलते हैं कि वो बेली बटन को थोड़ा सा टाइट करे और मीन्स एब्डोमेन को टक करे। उसके बाद में पेशेंट को अपन इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जस्ट लाइक होल्डिंग द यूरिन, उसकी एक्टिविटी करनी है उस तरह से करनी है। उसको होल्ड करना है फॉर ए मिनिमम 3 सेकेंड और 4 to 5 सेकेंड डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन कि किस तरह से कितना अपने को करना है। इसमें ये चीज़ बेसिकली ध्यान रखनी होती है कि दीज आर द स्मॉल मसल्स, तो मैक्सिमम होल्डिंग और मैक्सिमम रिपीटेशन अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ऑफ द इजीली फटीगनेस। तो उसके लिए अपने को मिनिमम होल्ड एंड मिनिमम रिपीटेशन बट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ अपन उसको एडवाइस कर सकते हैं। नाउ सेकंड जो बेसिकली एक्सरसाइज अपन ले रहे हैं दैट इज लोअर एब्डोमिनल एक्सरसाइज। अगेन लोअर एब्डोमिनल एक्सरसाइज में अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सुपाइन पोजीशन में है, नी बेंड किया है, देन अगेन बेली बटन को अपन टाइट करेंगे, देन एब्डोमेन लोअर एब्डोमेन को टक करके रखेंगे, देन होल्ड करके रखेंगे, देन रिलीज करेंगे। दिस बेसिकली हेल्प्स द इंक्रीज इन द कोर स्टेबिलिटी। और भी बहुत सारी कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस होती हैं। नाउ नेक्स्ट जो एक्सरसाइज अपन सिखा रहे हैं दैट इज द आर्म चेयर पुशअप्स। ये आर्म चेयर पुशअप्स बेसिकली अपन क्यों सिखा रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ अपर लिम्ब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। अपर लिम्ब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज अपन इसलिए करवा रहे हैं कि जब पेशेंट को अपन कोई भी असिस्टेड डिवाइस दे रहे हैं या पेशेंट को उठ के बैठना है तो ये बेसिकली स्ट्रेंथ उसको हेल्प करती है टू मिनिमाइज द स्ट्रेस ऑन द वेट बेरिंग हिप। तो इसलिए अपने को वहाँ पे आर्म पुशअप इस तरह से चेयर के ऊपर पेशेंट को एडवाइस करनी चाहिए, इस तरह से सिखाना चाहिए। उसके अलावा जो एक्सरसाइज अपन करते हैं वहाँ पे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होगी, अबडक्शन एक्सरसाइजेस, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस लाइक हील स्लाइड्स, नी फ्लेक्शन, हिप एंड नी फ्लेक्शन, शॉर्ट आर्क क्वाड्रिसेप्स। शॉर्ट आर्क क्वाड्रिसेप्स में बेसिकली अपन नी के नीचे टॉल रोल रखते हैं, हील को रेज करने के लिए बोलते हैं, देन होल्ड करने के लिए बोलते हैं, देन रिपीट मींस 10 काउंट होल्ड और सो ऑन 5 काउंट डिपेंडिंग ऑन की स्ट्रेंथ की कितनी है। प्रोग्रेशन जैसे अपन करेंगे तो प्रोग्रेशन में ये जो सारी एक्सरसाइज अपन करवा रहे हैं उनमें वेट रेजिस्टेंस ऐड करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द लोड प्रिंसिपल। धीरे धीरे वो किस तरह से स्ट्रेंथन करता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। ना एक्सरसाइज प्रोग्रेशन ये तो गया कि किस तरह से अपन करेंगे। ना एक्सरसाइज प्रोग्रेशन अपन करवा रहे हैं तो जैसे अपन ने जैसे एज आई सेड कि जो भी एक्सरसाइज अपन यहाँ पे करवा रहे हैं वो एक्सरसाइज को आइसोमेट्रिकली लोड करेंगे और रेसिस्टिवली लोड करेंगे
This is basically isometric for the abductor muscle in the standing position. यहाँ पे क्या अपन कर रहे हैं, यहाँ पे पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में है, वो वॉल को प्रेस करेगा अगेंस्ट विद द थाई, lateral thigh. So that basically gives isometric contraction to the gluteus medius muscle. रेसिस्टिव बेंड के साथ में भी बेसिकली अपन रेसिस्टिव बेंड के साथ स्ट्रेंथिंग ऑफ द एब्डक्टर मसल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ध्यान रखना है, ट्रंक बेंड नहीं करना है, स्ट्रेट होना चाहिए. और ये बेसिकली विद द बेंड अपन इसको इस तरह से, दीज आर द बेसिकली प्रोग्रेशन ऑफ द एक्सरसाइजेस. नाउ विद थेरा ट्यूब्स, डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट मसल के लिए अपन एक्सरसाइज कर सकते हैं फॉर एडक्टर, एब्डक्टर्स एज वेल एज मीडियस. साइड लाइन में एब्डक्शन अपन बेसिकली कर सकते हैं बाय प्लेसिंग वन पिलो बिटवीन द बोथ लिम्स. एब्डक्शन एक्सरसाइजेस इन द साइड लाइन. नाउ रेसिस्टेड बेंड के साथ इन सिटिंग पोजीशन एब्डक्शन स्ट्रेंथनिंग अपन कर सकते हैं, बिकॉज एब्डक्टर इज द बेसिकली की मसल जो वीकनेस में और स्ट्रेसेस के ऊपर काम करता है. बिकॉज जैसे पहले भी बायोमेकेनिक्स में लिया, जब आप बेसिकली एक पैर के ऊपर लोड डाल रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है, एब्डक्शन टॉर्क जनरेट होता है. तो इफ एब्डक्टर इज वीक देन there will be more load on the weight bearing hip. तो इसलिए अपने को एब्डक्टर स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करना चाहिए. नाउ विद द इन स्टैंडिंग हिप एंड नी फ्लेक्शन, दैट मींस दिस इज द अगेंस्ट ग्रेविटी विद सपोर्ट. यहाँ पे अपन ले सकते हैं आइदर बाय स्टिक और आइदर बाय वॉकर. नाउ दिस इज द सिटिंग आइसोमेट्रिक ऑफ द हिप फ्लेक्सर. यहाँ से इस पे प्रोग्रेस अपन कर सकते हैं. नाउ दिस इज विद द केन इन द स्टैंडिंग पोजीशन. दिस इज विद द चेयर. तो डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सरसाइजेस से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस, सेम एक्सरसाइज को अपन बेसिकली परफॉर्म कर सकते हैं, पेशेंट को सिखा सकते हैं. होम एक्सरसाइज प्रोग्राम में भी इससे सिखा सकते हैं, जिस तरह से भी वो करना चाहे उस तरह से बेसिकली वो परफॉर्म करे. सेट्स ऑफ 10 रिपीटिशन, सेट्स ऑफ 10 काउंट, 10 रिपीटिशंस और 3 टाइम्स इन अ डे. बेसिकली इस तरह से वो उसको अपन एडवाइस कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं. 10 to 15, 15 to 20 और रेसिस्टेंस भी ऐड कर सकते हैं. जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है दैट इज द SLR फॉर द क्वाड्रिसेप्स एज वेल एज इलियोसास. इसका प्रोग्रेशन अगर अपन करेंगे तो यहाँ पे रेसिस्टेड बेंड मींस दिस वेट का अप्लाई कर सकते हैं. नाउ नी प्रोन के अंदर अपन हिप एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल. दिस इज द प्रोग्रेशन. दिस इज द शॉर्ट लीवर, दिस इज द लॉन्ग लीवर strengthening. Now in the standing also with the bend strengthening कर सकते हैं. With the tubes, these are the by the weight curve different progressive exercises. Modified breathing यहाँ पे कर सकते हैं, that means breathing है modified with TheraBand with single leg. So these are the basically exercises जो prescribe कर सकते हैं for this. Stationary bicycle अपन यहाँ पे दे सकते हैं patient को. That is basically aerobic exercises जिसमें अपन और brisk walking patient को अपन सिखा दे सकते हैं. Now progression में जब अपन और आगे की तरफ जा रहे हैं तो mini squats basically patient को अपन एडवाइस करेंगे. Now step training, ये सारी जितनी भी आ रही है माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशंस में अपन दे रहे हैं, लेकिन जब स्ट्रेंथनिंग इंप्रूव हो जाएगी, जब अपनी बेसिकली रेंज ऑफ मोशन आ जाएगी, उसके बाद में आप उसका प्रोग्रेशन पे इस पे जाएंगे. बिकॉज अगर यही सेम चीज़ अपन करेंगे इन अर्ली केसेस तो स्ट्रेसेस और ज़्यादा आएंगे बिकॉज मसल आर वीक. सो इसलिए अपने को बाद में ये चीज़ें सिखानी होती है. नाउ वॉल स्लाइड्स भी बेसिकली पेशेंट को दे सकते हैं. वॉकिंग एडवाइस कर सकते हैं विद केन, दैट बेसिकली मिनिमाइज द स्ट्रेस, जो पहले भी अपन ने देखा है. मोर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस अपन जब स्ट्रेंथनिंग हो रही है उसके बाद के जो नेक्स्ट प्रोग्रेशन अपन देते हैं, दैट मींस हील वॉकिंग टू वॉकिंग हील स्टैंडिंग, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. दिस इज मोर फॉर द बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन. बैलेंसिंग ट्रेनिंग अपन दे सकते हैं विद सिंगल लेग स्टैंडिंग और विद बॉल विद फॉर्म और विद कॉन्ट्रालैटरल और एप्सिलैटरल सिंगल लेग स्टैंडिंग. दीज आर द बेसिकली एडवांस एक्सरसाइजेस जो और आगे की तरफ अपने को करनी चाहिए जब पेशेंट बेसिकली रेंज ऑफ मोशन पे फुल उसकी रेंज ऑफ मोशन है, मसल स्ट्रेंथनिंग आ गई है, उसके बाद में प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग और ये जो अपन ने लिया है. देख इसके जब ये सारी चीज़ें अपन की इंप्रूव हो जाती है तब पेशेंट को अपने को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की तरफ मूव करना चाहिए. उसमें जो भी पेशेंट का पेशेंट की हॉबी है, जो भी पेशेंट का इंटरेस्ट है जिस भी स्पोर्ट्स के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग उसको बेसिकली अपने को ट्रेन करना चाहिए. स्विमिंग और स्पीड वॉकिंग, गोल्फिंग, जो भी जिस भी एक्टिविटी में वो है.
जो भी बेसिकली उसको स्पोर्ट्स करना है उसके अंदर। नाउ दिस इज द बेसिकली नाउ प्रोग्रेशन अगर अपन करते हैं मॉडरेट टू एडवांस स्टेजेस, तो इसमें डिफरेंस क्या है कि जैसे अगर अपन ग्रेड 3 ग्रेड 4 की तरफ जा रहे हैं तो लिमिटेड चीज़ें अपने पास है, लिमिटेड, क्योंकि बिकॉज जॉइंट के अंदर डिस्ट्रक्शन हो गया है, तो वहाँ पे जो अपने कुछ चेंजेस होंगे, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें अपन जो अपन ने पहले भी एक्सरसाइज ली है वो सारी अपन नहीं करवा सकते। तो उसके लिए अपने क्या करना रहेगा, मॉडरेट टू एडवांस स्टेज के अंदर जो मेन गोल अपना है दैट इज द रीस्टोर द फंक्शन एंड रीस्टोर द जॉइंट मैकेनिक्स। तो उसके लिए अपने को क्या करना रहेगा कि मैकेनिक्स को या फंक्शन को रिस्टोर करना है, तो टॉयलेट सीट को अपन बेसिकली उसका मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का असिस्टेंस उसको दे सकते हैं कि किस तरह से उसको पहनना है, सॉक्स या जो भी उसका फंक्शनल या ऑक्यूपेशन अफेक्टेड हो रहा है। अडेप्टिव डिवाइसेस बेसिकली उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देन ऑनसेट ऑफ पेन अगर अपन ले रहे हैं तो पेन को कम करने के लिए बेसिकली पेन जो ऑनसेट है, पेन का एरिया बेसिकली अपन यहाँ पे देखते हैं कि कौन से एरिया पे पेन है, दैट मीन्स ऑन द बटक्स और ग्रोइन और थाई, उसके अकॉर्डिंग किस उसमें मूवमेंट पे अपने को अवॉइड करना है, कौन सी चीज़ पे बेसिकली फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें जैसे अपने को उस पर ध्यान रखना है कि जब अपन मॉडरेट टू उसमें जा रहे हैं तो जो मेन जो प्रॉब्लम उसको ज़्यादा रहेगी उसी पे बेसिकली अपने को फोकस करना होता है ना। ये तो क्या अबाउट द दिस कि अगर अपन आर्थराइटिस को कंजर्वेटिवली ट्रीट कर रहे हैं, तो अगर सपोज अपने को ट्रीट करना होता है, अगर आप ग्रेड 4 चेक कर ट्रीट करें तो ग्रेड 4 में बेसिकली अपन उसको ऑपरेटिव मेजर्स सजेस्ट करते हैं। तो ऑपरेटिव मेजर्स के अंदर बेसिकली जो कंडीशन होती है दैट इज द जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज बेसिकली THR, और जो रिहेबिलिटेशन होगा वो फिर THR का फॉलो करेगा। THR में जो मेन चीज़ अपने को ध्यान में रखनी होती है कि अगर आप आर्थराइटिस ट्रीट कर रहे हो आफ्टर THR मीन्स आर्थराइटिस ट्रीट हुआ है बाय द टोटल हिप रिप्लेसमेंट, तो रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल मोर और लेस सेम रहता है, बस कुछ प्रिकॉशंस बेसिकली ध्यान रखने होते हैं। तो वो एक दो स्लाइड्स में दिखा सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे जो अवॉइड करना है दैट इज अबव 90 डिग्री फ्लेक्शन इन द इनिशियल स्टेजेस, क्रॉस लेग सिटिंग, देन फॉरवर्ड बेंडिंग और इंटरनल रोटेशन, एक्सेसिव एडक्शन, लो स्क्वाट्स, ये सारी चीज़ें बेसिकली अवॉइड करनी चाहिए आफ्टर THR। और सर्टेन टेक्निक्स होती हैं जो लिफ्टिंग टेक्निक्स होती हैं कि किस तरह से पेशेंट को बेसिकली लिफ्ट करना चाहिए फ्रॉम द बेड, आउट ऑफ द फ्रॉम बेड वो किस तरह से आएगा। मीन्स यहाँ पे पेशेंट को अगर अपन ले रहे हैं तो पेशेंट कभी भी 90 डिग्री बेंड नहीं होना चाहिए, उसको टर्न करना चाहिए ऑन द बेड, देन स्लाइड करना चाहिए लाइक दिस, अवॉइड करना चाहिए 90 डिग्री फ्लेक्शन इन द अर्ली THR रिहेबिलिटेशन। स्टैंडिंग में भी यही चीज़ ध्यान रखनी है, वॉकर के साथ वॉकिंग करनी है, क्रच के साथ में भी। और ये तो एक्सरसाइज है जो पहले, हाँ स्ट्रेट रनिंग जब अपन पेशेंट को बेसिकली सिखाते हैं तो स्ट्रेट रनिंग में अपने को ध्यान रखना है कि जब पेशेंट को अपन असेंड कर रहे हैं, जब पेशेंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑलवेज स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट, और पेशेंट जब असेंड करेगा तो जो गुड लिम्ब है दैट विल पुट फर्स्ट ऑन द स्टेप, जब वो डिसेंड करेगा तो जो ऑपरेटेड लिम्ब है उसको वो पहले रखेगा। ये बेसिकली अपने को ट्रेन करना है ड्यूरिंग स्ट्रेट ट्रेनिंग और डिसेंडिंग विद द क्रचेस। इस तरह से बेसिकली दिस इज द ऑपरेटेड लेग, दिस इज नॉर्मल लेग, तो ये पहले इस तरह से ऊपर जाना चाहिए। जब आप बेसिकली डिसेंड आ रहे हो तो दिस इज ऑपरेटेड विच कम फर्स्ट। तो ये अपने को बेसिकली पेशेंट को ट्रेन करना चाहिए किस तरह से उसको वो आउट और इन ऑफ द बेड, ये बता ही दिया है। नाउ सिटिंग अगर वो करेगा तो बिहाइंड द चेयर वो बैठना चाहिए इस तरह से। सम ऑर्थोटिक अप्लायंसेस लाइक दिस पेशेंट को यूज करना चाहिए आफ्टर THR, जिससे स्क्वाटिंग अवॉइड हो, और वो जब बैठेगा तो इस तरह से पेशेंट बेसिकली बैठना चाहिए फॉर बाथिंग। शावर लेना चाहिए हमेशा, इस तरह से वो पेशेंट अपना पैर को रखना चाहिए। ये असिस्टेड डिवाइस होता है जो टॉयलेट के ऊपर बेसिकली हाइट को रेज करने में यूज होता है, तो हैंड रेल्स के साथ अपन उसको एडवाइस कर सकते हैं या उसको देना चाहिए जिससे कि उसको स्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं हो। गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द कार, फ्रंट सीट पे पेशेंट को बेसिकली ट्रेन करना चाहिए। पेशेंट पीछे से बैठेगा देन वो जिस भी लिम्ब को ऑपरेटेड है उसको लिफ्ट करके अंदर लेगा। बस यहाँ पे स्पेशल प्रिकॉशन ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के अबव नहीं जाना चाहिए इन अर्ली केसेस।
तो these are the basically special precautions जो ध्यान रखने होते हैं, और बाकी का जो rehabilitation होता है that is more or less same. So this is basically rehabilitation protocol for this. एक चीज यहाँ पे जो ध्यान रखनी है टू द ऑल थेरेपिस्ट कि कौन से कंडीशन में बेसिकली अपन ट्रीट कर रहे हैं. कौन सी कंडीशन का मतलब है कि आप जो भी वहाँ पे आर्थराइटिस ट्रीट कर रहे हो, दैट पर्टिकुलर आर्थराइटिस कौन सी ग्रेड में है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4. ग्रेड 1, 2 और अप टू 3. तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को आप कंजर्वेटिवली ट्रीट कर सकते हैं. ग्रेड 3 अगर अपन एक स्केल वहाँ पे ले रहे हैं तो उसमें देयर विल बी चांसेस कि वहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में रहता है. बट अगर ग्रेड 4 है या मैक्सिमम डीजनरेशन अगर हो गया है तो दैट सर्टेनली नीड्स सर्जिकल इंटरवेंशन. और फिर सर्जिकल इंटरवेंशन के बाद में आपको रिहेबिलिटेशन करना चाहिए. ये नहीं है कि ग्रेड 4 भी हो रहा है फिर भी आप उस पर रिहेबिलिटेशन प्लान वो कर रहे हो. हाँ, मोर और लेस आप उस पर थोड़ा बहुत उस पर रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, बट आइडियली जो ट्रीटमेंट एडवाइजेबल है उसी के लिए अपने को प्रॉपर रेफरल करना चाहिए. देन उसके बाद का ट्रीटमेंट अपने को फॉलो करना चाहिए. So this basically completes the rehabilitation protocol for the osteoarthritis of the hip, conservatively as well as the after surgical, after THR. Hello? 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 Hello, am I audible sir? हाँ हाँ अभी आ रही है. सॉरी मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई है तो सॉरी. Okay, no issue. मैं विजिबल नहीं हूँ शायद. कोई बात नहीं सर. Even though thank you sir, thank you very much. It was a great session and you have explained well enough about the osteoarthritis and its rehabilitation, even in a so much elaborated way. So we are really grateful to you, and it was a very much informative session. I was attending the session, but there is a lot of connectivity issue, though I was unable to unmute myself for a few seconds. So sorry for that inconvenience. Okay. Any questions? Yeah, sir. I'm open to for questions. Yes, sir. If anybody has any query, they can ask. So there is a few questions. Yes. Muskan is asking about the annual test. Can you please give a brief of annual test? Yes. Annual test is basically patient जो रहता है, जैसे supine position में अपने patient को लिया, मान लो कि जैसे ये है, मेरा हाथ दिख रहा है? Yes sir, visible है. Okay. तो अगर अपन बात करते हैं, this is leg, this is foot. Okay. तो basically अपन ने leg को hold किया है, this is heel. तो जो दूसरा हाथ होगा उसको basically अपन heel पे रख रहे हैं और heel पे अपन strike करते हैं इस तरह से. ठीक है. तो जब basically अपन strike करेंगे तो longitudinally directly long axis पे pressure जाता है towards the hip. तो if any pathology in the hip, तो वो pain होगा in the intra-articular region. This is basically this test. Thank you sir, thank you very much. And sir, one more query from the Muskan itself, that which radiological classification is ideal for physical therapist? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है आइडियल. तो जो भी सारी क्लासिफिकेशन है, अलग अलग क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन की हुई है. तो जो भी बेसिकली अपने को जो ध्यान रखना होता है दैट इज द ग्रेडिंग सिस्टम, और जो डिपेंड करता है कि आपने ग्रेड 1 ग्रेड 2 में अगर लिया है तो नैरोइंग जो देख रहे हैं, जितने ज्यादा एक्सरेज या जितनी ज्यादा आप रेडियोलॉजी देखोगे उतना ज्यादा आप बेसिकली समझ पाओगे कि हाँ क्या बेसिकली डिफरेंस आता है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में. बिकॉज माइल्ड टू मॉडरेट में बहुत कम चेंजेस होते हैं. मॉडरेट टू सीवियर में आप इजिली देख सकते हो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस है. वहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स भी है, वहाँ पे सिग्निफिकेंट नैरोइंग भी होती है. बट इन केस ऑफ अर्ली और माइल्ड आर्थराइटिस, अर्ली आर्थराइटिस में उस कंडीशन में आपको बेसिकली सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द नॉर्मल साइड देखने होते हैं. तो ऐसा नहीं कि कौन ये आइडियल है या ये आइडियल है, वो कोई भी क्लासिफिकेशन को आप फॉलो कर सकते हो. सारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे है. अमेरिकन रोमेटोलॉजी कॉलेज ने बेसिकली दिया हुआ है, ARC ने सारा. Okay sir, thank you sir, thank you very much. Can you please give some gist on the core stabilization exercises, sir? The question was being asked by Radhika.
कोर स्टेबलाइजेशन। तो बेसिकली हाँ, कोर स्टेबिलिटी में बेसिकली अपन जो ले रहे हैं, जैसे अगर अपन कोर की अगर बात करते हैं तो जैसे सपोज अगर ये एक अपन बॉडी लेते हैं, ठीक है, तो बॉडी में दिस इज द बेसिकली एंटायर रिंग, ठीक है। तो इस एंटायर रिंग की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अगर अपन दिस इज द पोस्टीरियर साइड, दिस इज द एंटीरियर साइड, ओके। सो पोस्टीरियर साइड में बैक एक्सटेंसर भी है, थोरैकोलम्बार फेशिया भी है। एंटीरियर साइड में अगर अपन आते हैं तो एब्डोमिनल फेशिया भी है, एब्डोमिनल मसल्स भी है। डीप इनसाइड अगर अपन आते हैं तो फ्लोर पे अगर अपन आते हैं तो पेल्विक फ्लोर मसल्स भी है, ठीक है। तो अपने को बेसिकली क्या करना है, अपने को सारी चीजों को एड्रेस करना है। तो सबसे पहली चीज अगर अपन आगे की तरफ से लेते हैं तो एब्डोमिनल एक्सरसाइज, स्पेशली लोअर एब्डोमिनल एक्सरसाइज एंड फ्लोर एक्सरसाइजेस व्हिच इज पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। इसके साथ साथ जैसे जैसे अपन आगे आएंगे तो पेशेंट को अपन प्लैंक्स भी करवा सकते हैं, लोअर एब्डोमिनल एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं। इन क्वाड्रिपॉड पोजीशन यहाँ पे थोरैकोलम्बार स्ट्रेंथनिंग भी बेसिकली करवा सकते हैं, जिसमें जैसे ये पोजीशन है तो अल्टरनेट, जैसे ये आपने लेग को लिफ्ट किया, दूसरे पैर को लिफ्ट किया पीछे की तरफ, अल्टरनेट इस तरह से क्रॉस में। एक हाथ जैसे ये जा रहा है, इसके रिलेशन में अपोजिट साइड का लेग आपने लिफ्ट किया और ऐसे फिर ये वाला लेफ्ट यूज किया। तो ये बेसिकली मोर टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस हैं जिनको बेसिकली अपन ट्रेन कर सकते हैं पेशेंट को। बट डिपेंडिंग कि उसका सिवियरिटी कितना है उसके अकॉर्डिंग या कितना वो बेसिकली उसको कर पा रहा है, कोई इसको प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही अपन वहाँ पे उसको रिहेबिलिटेट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। So again I would like to request, yes sir, please. Now I think there is no more question. We have addressed all the questions and it was really a well elaborated session. So most of the queries has been sorted out in between even. So I was listening to the session. It was a wonderful and excellent session. We are really thankful to you sir for such a great learning ahead in the session today. And if anybody has any query, they can even though ask till now also. Yeah. But I think most of the queries has been sorted out. So okay. Thank you sir. Really, it was a wonderful session. Thank you. And Thank you. we Thank had you a so great learning ahead here. And we are really also thankful to all the senior faculty members and academicians who are joining us for the session. And Dr. Amita Anup Sharma ma'am, Dr. Kalpana Jutsi ma'am, Dr. Jitan Munjal sir, my own teacher and mentor Dr. Harsh sir, Charu ma'am, and Ritu ma'am. So really thankful to you all for joining us continuously and supporting and blessing us. And we are really blessed to have such great personality with us for supporting us in this endeavor. Now at the last, before going to information, sir, if you allow, there is one more query just we get in the chat box. Yes, please. Can we develop neuromuscular control? How can we develop neuromuscular control? ओके, सो बेसिकली न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल में ये है कि नर्व को और मसल कंट्रोल, तो जो जैसे अपन ने बेसिकली यहाँ पे लिया कि जैसे न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को ये करना पड़ेगा कि अपने को बैलेंस ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग, जैसे मैंने लास्ट वाली स्लाइड्स में देखा होगा, सिंगल लेग स्टैंडिंग अपन ने लिया था और अपन ने बेसिकली सिखाया था कि हील वॉकिंग, टो वॉकिंग, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इन सारी चीजों से बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल डेवलप कर रहे हो। बेसिकली यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, बैलेंस अपन ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे मसल्स और जो प्रोप्रियोसेप्शंस हैं वो बेसिकली वहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं और वो जॉइंट पे स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन एंड नॉर्मल स्ट्रेंथनिंग अराउंड, मतलब नॉर्मल जो मसल है वो जॉइंट के अराउंड एक्टिव होगा, उसके बाद ही आप वो चीजों को इंक्रीज कर सकते हो बाय एडवांस मीन्स। न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग